السلام علیکم خبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ؟ خیریت؟ علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی جی. آواز آ رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آ رہی ہے. اور سب آواز آ خیریت؟ نہیں رہی ہے آپ لوگوں کی. خیریت. ایک منٹ، شاید کچھ پرابلم ہے. آپ خیریت. کی آواز تو آ رہی ہے ہم لوگ کو. ایک منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میری آواز بھی جا رہی ہے؟ جی جی اب سب کی آ رہی ماشاء اللہ. کچھ یہیں سے پرابلم. چلیے تقریباً ابھی آ گئے ہیں، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تمام حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے آج چونکہ عقد جناب مولا کائنات اور عقد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو آپ سب کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں، اور اصل وارث خوشی حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی آج کے اس مبارک تبریک پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری گفتگو ترجمہ قرآن اور کچھ تفسیر قرآن میں چل رہی ہے، اور اب تک ہم جو پہنچے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سورہ کسے کہتے ہیں، اور سورہ کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا کہ سورہ جو ہے وہ دیوار کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ سورہ قرآن مجید کا جز کہلاتا ہے تاکہ دوسرا حصہ سمجھ میں آ سکے. مکی کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں، تقریباً ان سارے مطالب کی طرف ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج ہم چلیں گے اپنے اصل مطلب کی طرف کہ جو ہمارا مطلب ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ کچھ چیزیں میں آپ کے لیے خاص طور سے نکال کے لایا ہوں کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ کر کے پھر وہ چچا کا ایک سوال تھا، اس سوال کی طرف چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنے اصل مطلب کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے یہ باتیں، یہ چونکہ کئی باتیں لائن سے ہیں، ایک کے بعد ایک الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا روز ایک بات ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کے حساب سے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قرآن میں ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے. اگر کبھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، وہاں پہ لکھا ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا معنی، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا تو لکھا ہے کہ تقسیم بندی بے لحاظ آیات. وہ تقسیم جو اوپر تھی، میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑا سا اور آسانی سے دیکھ سکیں. ایک منٹ بس. جی یہ تقسیم بندی دکھائی دے رہی ہے بڑی بڑی؟ جی اس سے پہلے ہم نے تقسیم بندی کی تھی نزول قرآن. تقسیم بندی بے اعتبار آیات کے لحاظ سے کہ مکی ہے یا مدنی. اب تقسیم بندی کے لحاظ آیات ہے کہ کون سا سورہ بڑا ہے، کون سا سورہ چھوٹا ہے، کون سا سورہ جو ہے وہ کس اعتبار کا ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے. کہتے ہیں قرآن سورتیں آیات اور مضامین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ سورے جو ہیں وہ طولانی ہوتی ہیں اور کچھ سورے جو ہے وہ مختصر ہوتی ہیں، یعنی کچھ بڑی سورے ہیں اور کچھ چھوٹے سورے ہیں. جو بڑے سورے ہیں دیکھیں ان میں ان کی تقسیم کی گئی ہے، اس اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے. کچھ ایسے ہیں سورے جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے. سبع یعنی پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ سبع کے معنی کیا ہیں؟ 7 ہے نا. سبع مثانی
उसी से ये भी है। सब यानी सात, तवाल आपने सुना होगा कि ये सफर बड़ा तूलानी हो गया, है ना। हाँ, ये आदमी बड़ा तवील है, ठीक है। तो लंबे के माने में है। सब तवाल, तवाल यानी सात लंबे, इंशाल्लाह भी आएगा। उसी तरह एक नाम है मऊन। मऊन जो अरब में है वो जानते हो, मियाँ। मियाँ कितने को कहते हैं? मियाँ 100 को बोलते हैं, 100 को कहते हैं, ठीक है। हाँ, मियाँ की जगह है मऊन। मऊन ऐसे ही जो है वो मसानी। मसानी ये भी एक नाम है कुरान मजीद की सूरतों का, आएगा नीचे नाम है कुरान मजीद के खास सिस्टम का, ठीक है। मुफस्सल का मतलब लंबा नहीं है, यहाँ पे मुफस्सल बताएंगे अभी छोटे छोटे। तब एतवाल किन सूरों कहते हैं, पहला आज ये बयान करके इंशाल्लाह अपने मतलब की तरफ रोज एक इसी तरह से कोई नई चीज इंशाल्लाह बता के तब हम तर्जुमे की तरफ जाएंगे। तब एतवाल किसे कहते हैं? वो आयात के तूलानी होने की वजह से उन सूरतों को ये नाम दिया गया है जो 7 सूरतों पर मुश्तमिल है, यानी बड़े सूरे। सबसे पहला सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? सूरह बकरा। सूरह बकरा, ये सबको पता है कि सूरह बकरा सबसे बड़ा सूरा है। इसके बाद जो है वो बकरा क्यों कहते हैं इसको? बकरा के माने अरब वाले ना बताएं, अच्छा, अजम वाले बताएं। गाय, बकरा के मायने गाय। हाँ, बकरा यानी गाय, ठीक है। गाय वाला सूरा, क्योंकि सूरे के अंदर जो है वो तफसील पूरी यही है कि एक अदद जो है वो गाय को पूरा तफसील आप देखेंगे कि जनाब मूसा से सवाल किया कि क्या करें, तो गाय जिब करो, अल्लाह का हुक्म है। गाय जिब हुई, कहा कि गाय अच्छा कौन सी हो, काली हो, पीली हो, रंगीली हो, चितकबरी हो, कैसी हो, ये सब बहस उसके अंदर पूरी हुई है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? गाय वाला सूरा। उसके बाद दूसरा सूरा है, उसका नाम क्या है? लंबा सूरा आले इमरान, ठीक है। आले इमरान ये भी कुरान का सूरह बकरा के बाद सबसे बड़ा सूरा आले इमरान है। आले इमरान, इमरान के कौन थे जानते हैं आप? अबू तालिब। हाँ, एक जनाब अबू तालिब थे और उससे पहले भी कोई एक इमरान, हज़रत जनाब मरियम के वालिद। एहसान जज़ाकल्लाह, जनाब मरियम के वालिद थे वो आले इमरान। इसीलिए इसमें बहस है कि इस सूरे से मुराद जनाब अबू तालिब की आल है या इस सूरे से मुराद वो इमरान है, और भी बहस है। सूरह निसा खवातीन वाला सूरा है ना, मर्दों का सूरा कुरान में नहीं आया है, बल्कि किसका आया है? हाँ, आप लोग अपने घर में कह सकते हैं, तो हम लोग कहती हो ना कि औरतों की कोई मंजिल नहीं है, कोई बकार नहीं है, कोई जगह नहीं है। कुरान मजीद में सूरह रिजाल नहीं रखा है, बल्कि सूरह निसा रखा है, इंसान रखा है। हाँ, इंसान रखा है कि मर्द हो के इंसान रहो इसलिए रखा है। उसके बाद सूरह मायदा। मायदा माने क्योंकि हमारा उन्वान जो है वो तर्जुमे कुरान है, लिहाजा हमें सूरों के माने आना चाहिए, है ना। सूरह निसा, निसा यानी औरत, अरब में रहने वाले। मायदा यानी टेबल, जिससे पकौड़ी छानते हैं वो वाला मैदा नहीं, बल्कि ये जो है मायदा यानी दस्तरखान। सूरह मायदा यानी दस्तरखान, दस्तरखान वाला सूरा। अब आप तारीख में तलाश करते रहिए कि वो दस्तरखान कौन सा था जिसके लिए सूरह आया है, उसकी तफसील में इंशाल्लाह बयान होगा। हज़रत ईसा का दस्तरखान। हाँ, बस वो ढूंढते रहिए कौन कौन ईसा का दस्तरखान। सूरह अनआम, सूरह कौन है? अनआम, ठीक है। सूरह अनआम, सूरह इनाम नहीं है, तोहफा नहीं है। जी जी जी, आवाज म्यूट कर रहे, कहीं से आवाज ज्यादा आ रही है जी, ठीक है। सूरह अनआम, अनआम इनाम नहीं है, ये सूरह अनआम तोहफे वाला सूरा नहीं है, बल्कि कौन सा सूरा है ये?
सूरह अनाम यानी नाम। चौपाओं। चौपाओं वाला, अच्छा नाम। हाँ, इनाम वो अनाम नहीं है, ये चौपाओं वाला सूरा। उसके बाद नाम सूरह से नहीं है, आराफ। जी, नींद से मतलब सोने से नहीं, अनाम। अनाम चौपाओं। अनाम जी। उसके बाद सूरह आराफ, ठीक है, आराफ। आराफ कहते हैं जैसे बरज़ख है, ऐसे ही एक जगह है, इंशाल्लाह उसकी तफसील बाद में आपको बयान की जाएगी कि आराफ क्या है। उसके बाद है एक सूरह यूनुस। ये 7 सूरे हैं जिनको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सबे तवाल। क्या कहते हैं, सबे तवाल। ये 7 सूरे कुरान मजीद की हैं जिनको सबे तवाल कहा जाता है, ठीक है इंशाल्लाह। इसके बाद हम चलते हैं अपने असल हदफ की तरफ, असल मकसद की तरफ। चचा, कल आपने जो सवाल किया था वो सवाल एक बार आप दोहरा दें ताकि और मजा आ जाए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा था कि जो सूरह हमद है उसको जब पढ़ा जाता है तो उसके पढ़ने से ये लगता है कि अल्लाह कह रहा है क्या कि मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा, उन लोगों के रास्ते पे चला, अल्लाह की हम तारीफ करते हैं, अल्लाह ऐसा है। तो ये जो कलाम है ये खालिक का कलाम नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से जो उसको कहा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफें अल्लाह की। अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकता, वो अल्लाह किसकी तारीफ कर रहा हो। तो मैं ये कह रहा था कि अलहम्द का ये जो नाजिल हुआ है सूरा, ये हजरत मैंने बताया था आपको, कहीं मैंने सुना भी था कि ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ थी और उसको अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम को जब ये आयत नाजिल हुई सूरह आला की कि इक़रा बिस्मे पढ़ अल्लाह के नाम से, जी जी जी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या पढ़ूं। तो तफसीर में है कि फिर उसके बाद उनसे कहा गया कि ये जो है सूरा पढ़ो, तब वो अल्लाह के लिए सूरा पढ़ा जिसमें अल्लाह के नाम से मदद से शुरू कर रहा हूँ। तो उसकी थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि हकीकत की मिलती आमतौर पर नहीं है कि ये कलाम है, खालिक नहीं लगता है अगर कोई दूसरा एतराज है। वैसे तो हमारा अकीदा है, समझ गया आपने इस बात। तो क्या ये फज़ाइल के सिलसिले में मौला के? हाँ, बहुत उम्दा। मैं ले आया हूँ आपके लिए, ढूंढ के लाया हूँ 2 बड़ी किताबों सबके लिए माशाल्लाह से आप एक नेक काम करेंगे और खैर करेंगे, हम लोग के ईमान में और इजाफा होगा, इसलिए मैंने कहा आपको याद कर देंगे। और मन ला यहज़रुल फ़क़ीह लिखने वाले हैं मरहूम शेख सदूक, और काफी लिखने वाले हैं शेख कुलैनी रहमतुल्लाह अलैहिमा। परवरदिगार इन दोनों पर रहमत नाजिल करे। अगर ये लोग ना होते तो आज हमारा दीन वाकई समझ में नहीं आता हमें। ये उलमा अगर हमारे ना होते, आज जो उलमा से दूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है उलमा से दूर रहिए, वाकई अगर उलमा को हमारे दीन से हटा लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मिलेगा, उजाला नजर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नक़्द किया गया है जनाब अबू तालिब के इस खुतबे पे, इसलिए मरहूम शेख सदूक और मरहूम शेख कुलैनी ने अपनी किताब शेख काफी और मन ला यहज़रुल फ़क़ीह में इस खुतबे को नकल किया है। इस खुतबे को बयान करने से पहले मैं आपकी बात अर्ज कर दूं कि पहला मसला ये है कि जैसे ये समझ में आता है कि ये सूरह हमद जो है वो हमारी खुदा का कलाम नहीं है। असल ये तसव्वुर हमारे यहाँ नहीं हो सकता। कुरान बिस्मिल्लाह से लेके बन्नास तक सिर्फ खुदा का कलाम है। ये एक सवाल इतराज के लिए उठाया ना कि वो वाकई ऐसी बात है, ये सवाल का जवाब के लिए उठाना बता रहा हूँ। नहीं, आपके अलावा आप तो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग सुने वो ऐसा ना सुने, ऐसा नहीं हो कि जनाब अबू तालिब का कलाम अल्लाह ने जो है रख दिया है ना, ये ज़हन में ना हो। जो भी है बिस्मिल्लाह से लेके नास तक सिर्फ खुदा का कलाम है। ये अलग बात है कि किसी का कलाम खुदा को इतना पसंद आ जाए कि उसे वो अपना कलाम है। जनाब अबू तालिब से पहले जनाब इब्राहिम ने भी लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, ठीक है। एक रिवायत में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, सबसे पहले जनाब इब्राहिम ने कहा है। इस बात से और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर जनाब अबू तालिब जनाब रिसालत माफ के अक़्द में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये साबित हो जाता है कि जो अकीदा जनाब इब्राहिम का था वही अकीदा जनाब अबू
तालिब का। अबू तालिब, वहाँ से भी मिल गया। सही बात। ये पहला मसला है जो वहाँ पे है। दूसरा मसला ये है यहाँ पे, ये देखिए शरीयत में हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह ने अमल किसी और का है लेकिन हुक्म सारे मुसलमानों को उसी का दे दिया। मसलन जनाब हाजरा सफा से मरवा जाती हैं, मरवा से सफा आती हैं, है कि नहीं? आपने सुना है? और इसी को हज में सही जो लोग हज कर चुके हैं परवरदिगार का कबूल फरमाए और दोबारा जाने की सआदत इनायत फरमाए, और जो हम जैसे लोग नहीं पहुंच पाए परवरदिगार हम सबको जल्द अज जल्द हाजी और जाहिर बनाए। ठीक है। दूसरा मसला ये कि सफा और मरवा है, सफा और मरवा की सही, ये इस्लाम कानून पहले नहीं था। ठीक है। एक नबी की माँ की सही को परवरदिगार आलम ने सारे मुसलमानों के लिए सही बना दिया। ऐसे ही चक्कर तवाफ खाना काबा ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम से पहले भी तवाफ होता था, लेकिन खुदा ने उसे ऐसे ही बहुत से अमल हैं। अरे वही देखो सब लग गया जी, ये सारी चीजें। अब एक हम बंद कर दीजिए उधर से। हमेशा सुनते आए हैं, चूंकि आज जो है वो अक़्द जनाब सैयदा और अक़्द जनाब अली अलैहिस्सलाम है, इसलिए ये खुतबा कम से कम एक बार हम जिंदगी में सुन ले जनाब अबू तालिब ने जो पढ़ा था, ताकि हमारा ईमान और ताज़ा हो जाए। ये दोनों किताब जो मैंने बताया उसमें लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़रअ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माईल। अलहम्द कहने के बाद कह भी रहे हैं कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी हम्द है कि तूने जअलना हमें करार दिया मिन ज़रअ इब्राहीम, इब्राहीम की ज़ुर्रियत और इस्माईल की ज़ुर्रियत से, व जअल लना महजूबा व हरमन आमिना, हमारे लिए घर करार दिया और एक हरम जो अमीन है, हमारे लिए अमानत है, अमन है जिसके अंदर। इसके बाद पूरा है व यजबा इलैहि तमरात कुल्ल शैइन व जअलना हुक्काम अला नास फी बलदिना अल्लज़ी नहनु फीही तुम्मा अन्न इब्न अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी अब्दुल मुत्तलिब ला युअज़नु बिरजुलिन मिन कुरैश इल्ला रजहा वला युकासु बिअहदिन मिनहुम इल्ला अज़म अन्हु। ये नबी करीम की तारीफ कर रहे हैं, ये मेरे अल्लाह तूने हमें इब्राहिम और इस्माइल की ज़ुर्रियत से करार दिया, हमारे लिए एक घर बनाया, एक हरम बनाया, अमन का करार दिया और हमें हर शय हर समरात से नवाजा। वजअलनल हुक्काम अला अन्नास फी बलदना, और हुक्काम को जो है वो करार दिया है लोगों पर हमें हमारे शहर में, वनहनु फीही, और हम उसी में हैं, वनहनु अन्ना, अब यहाँ से शुरू कर दे, तुम्मा अन्न इब्न अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। ठीक है। फिर जो कहते हैं कि बेशक मेरे भाई के बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब ला युज़नु बिरजुलिन, इनका किसी से मुकायसा नहीं किया जा सकता, मुआदना नहीं किया जा सकता, मिन कुरैश, चाहे वो कुरैश सही क्यों ना हो, इल्ला रजहा, मगर ये कि उनमें बरतर है, वला युकासु बिअहदिन मिनहुम इल्ला अज़म अन्हु, कोई कयास नहीं किया जा सकता किसी एक का भी इस नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये है नबूवत का अकीदा। तौहीद से शुरू किया, नबूवत पे आए। वइन नकाना फिल माल क़ल्ला, ये अलग बात है, अगरचे ये जो है माल के एतबार से इनके पास कम है। वइन्नल माल रज़क़ा हाइलुन वदल्ल ज़ाइलुन वलहु फी खदीजा। ठीक है। माल जो है वो रिज़्क़ हाइल है, वदल्ल साइल, और साइल है, ये साया है, ज़ाइल होने वाला है। वलहु फी खदीजा रग़बहु वलहा फी रग़बहु, ए मेरे अल्लाह तूने खदीजा के दिल में इनके लिए रग़बत डाली है और इनके दिल में खदीजा के लिए रग़बत डाली है। वस्सिदाक़ु मा सअलतुम आजिला व आजिला, और सिदाक यानी वही महर, आजिला व आजिला यानी या अभी या बाद में। वलहु खतरुन अज़ीम, ये यहाँ पे एक जुमला कहा है कि खदीजा के लिए शादी तो हो रही है लेकिन उनके लिए एक खतरे अजीम है। क्यों? इसलिए कि बहुत से लोगों ने क्या किया था, रिश्ता भेजा था और जनाब खदीजा ने सबको ठुकरा दिया था। शानुन रफी, ये एक ऐसा मेरा भतीजा है कि जिसकी शान रफी है,
वलिसानुन शाफ़िअ जसीम। अब ये पूरा इंशाल्लाह यहाँ तक जो लिखा है उन्होंने, देखें फ़ुरूए काफ़ी जिल्द 2 सफ़ा 19 और 20, और मन ला यहज़रुल फ़क़ीह जिल्द 3 सफ़ा 357। ये जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़्द था जो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ा है। यहाँ तक आपकी खिदमत में जो है वो अर्ज किया गया। आप चलते हैं अपने असल मतलब की तरफ इंशाअल्लाह, जो हमारी गुफ्तगू है। ठीक है, वक्त बहुत कम है। बहरहाल कल हमने जो है वो सूरतुल फातिहा की गुफ्तगू की थी कि कितने नाम हैं इसके। बहरहाल वो नाम आपको याद होंगे कि सूरह फातिहा के नाम कितने हैं। सबे मसानी है, हम्द है, उम्मुल कुरान है, कंज है, असास है, शिफा है, दुआ है, काफिया है, वाफिया है और शाफिया है। आज बहस हमारी है इंशाअल्लाह जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भी हम एक चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हैं? जी, अल्लाह हमें शैतान के शर से निजात दे। हाँ, तो हम जब अल्लाह के नाम से शुरू ही करने जा रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत शैतान की पनाह दे? क्या यहाँ भी शैतान आ जाएगा? चलें, शैतान वही रहता जहाँ मोमिन है। हाँ, खुदावंद आलम ये चाहता है कि बंदा सबसे पहले कहे, जैसे कलमे में आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा, तबर्रा जी, है ना? हाँ, पहले तबर्रा। एक मोमिन की सेवा ये है कि पहले वो तबर्रा पढ़ता रहे, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तबर्रा भी हमारे यहाँ उसका मफहूम बदल दिया गया है समाज में। तबर्रा जो है हमारे यहाँ मफहूम बदल दिया गया है। तबर्रा एक ऐसी चीज है जो कि मैं इतनी मेहनत करके लिखा भी और फारसी के फॉन्ट से लिख दिया। बहरहाल चलिए, कहते हैं कि तबर्रा हमारे यहाँ जो तबर्रा है वो तबर्रा नहीं है। कभी कभी जो हम तबर्रा भेजते होते हैं वो तबर्रा भी हमारे गले में आके लटक जाता है। चोर कहे चोरी करना बुरी बात है, हैं? अगर चोर कहे कि हम चोरों से बारात करते हैं तो सबसे पहले उसकी बारात कहाँ जाएगी? चोर के ऊपर जाएगी। सीधी सी बात है। तो फिर हम जिन किरदारों से नफरत करते हैं, अगर वही किरदार हमारे अंदर हो तो वो बारात कहाँ जाएगी? हमारे पास। किरदार, अमल और अकीदे की बात है। अकीदे की तो बात है भाई, किरदार गुनाह है, ठीक है, तो सजा मिलेगी, लेकिन अकीदा तो सही है। बात ये है उनका तो अकीदा तवल्ला उसूले दीन में नहीं है। नहीं, ये अमल हमारे ऊपर जाएगी, बेशक जाएगी, लेकिन हम फिर भी मुसलमान रहेंगे क्योंकि अकीदा तो हम रखे हुए हैं उसूल दीन पर। ये मैं कह रहा था। लेकिन अमल गलत है तो सजा मिलेगी भाई, और अल्लाह माफ कर दे तो माफ कर दे। अगर गलत तबर्रा कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे, मुसलमान तो रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अकीदा तो सही है, अमल गलत है। हाँ, वो अलग चीज है। देखिए वो तो बात ही अलग है। हमारे पास आएगी आएगी, ठीक है, तो गुनाहगार अब 20 है, इसमें भी आ सकते हैं, अल्लाह माफ करे, सजा दे। सीधे लान अल्लाह कहा जाता है ना, अल्लाह की लानत। आप हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते। लानत ही बहुत बड़ी, सबसे बड़ी लानत ही है जो कुरान में है। बस जी जी, लान अल्लाह कह के भेजिए। हाँ, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत। नहीं, जैसा किबला कह रहे हैं कि अल्लाहुम्मा लन कौम ज़ालिमीन कह रहे हैं और आप खुद जुल्म कर रहे हैं, तो बारात आप पे जाएगी। ये मतलब मेरे ख्याल से यही नहीं जाएगी। हम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, रोजा भी नहीं रख रहे हैं, बताइए इतना बड़ा खुल्लम खुला गुनाह करेंगे तो वो भी तो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा और हम लोग गुनाह करें। नमाज में आपका शख्सी मसला है, तो उसमें भी हमारे पर जाएगी तो हमारे पर तो आएगी लानत। हमने और खुद को काम कर रहे हैं, जो जैसा करेगा वही उसके आगे आएगा भाई। सीधी सी बात है, जैसी करनी हमारी वैसी करनी। ये तो हम बंद कर दिया, बहुत सो रहा था, इससे सो रहा था ना, वैसे बंद कर दिया। ये मुमकिन नहीं है कि तबीयत सही नहीं रही, सुबह में बुलाया हूँ ब्लड। हाँ,
तो बहरहाल ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह किसको कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाह कहते हैं कि हम पनाह मांगते हैं अपने परवरदिगार से कि वो शैतान रजीम से जो है हमें महफूज रखे, बचाए रखे। ये है मसला। अब आइए चलते हैं हम सूरतुल फातिहा की तरफ। सूरतुल फातिहा क्या है? देखें आप, शुरू होता है कहाँ से? लफ्ज़े बे से, ठीक है? इसीलिए कहते हैं बे और बे, हाँ, बिस्मिल्लाह का बे और वन्नास का सीन, ठीक है? बिस्मिल्लाह का बे और वन्नास का सीन, पूरा कुरान बस इसी में सिमटा हुआ है ना? तो सबसे पहली चीज जो है वो बे है। बे क्या चीज है? हम यहाँ सबसे पहला मसला है, ये अलग कर दीजिए, उसमें मिला रहता है, इसे समझ में नहीं आता कि अलग से है। हाँ, इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। देखें, एक है बे, दूसरी चीज है इस्म, यहाँ पे अलिफ होगा इस्म, तीसरी चीज है अल्लाह, चौथी चीज है रहमान और पांचवी चीज है रहीम। इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू इन्हीं पे होगी। लफ्ज बे क्या है? बे के मानी क्या है? सबसे पहला मसला है लफ्ज बा का मानी, क्योंकि हम तर्जुमा कुरान करने बैठे हैं। अगर हमें लफ्ज बे का मानी नहीं पता होगा तो हम जो है वो, ये तो हमें पता है कि ये बे जो है इसके नीचे नुक्ता है ना, ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि इस बे का मानी क्या होगा। चलिए देखते हैं बे के मानी क्या है। कोई साहब है जो बताएं बे के मानी क्या है? इस्तिआनत, मदद। अहसन। हाँ, कुछ लोग कहते हैं साथ के माने में है, कुछ लोग कहते हैं शुरू के माने में है, कुछ लोग कहते हैं इब्तिदा के माने में है। तो यहाँ पे बे के माने क्या है? इस्तिआनत है। ये बा बाए इस्तिआनत है, ठीक है? इसके नीचे जो नुक्ता है उसके लिए रिवायत है हमारे पास मौलाए कायनात की कि अन नुक्ता तो तहतल बा, मैं वो नुक्ता हूं जो बे के लिए। अब यहाँ एक हदीस है, मुझे याद आ गई अभी फौरन, तो आपको बता दूं। मौलाए कायनात ने कहा है मुझे अलिफ न कहना, मुझे अलिफ कभी न कहना, इसलिए कि अलिफ जो है मकाम खुदा है, अलिफ मकाम खुदा है। मुझे बे भी ना कहना, इसलिए कि बे भी जो है वो मकाम नबी करीम है। मुझे क्या कहो? अना नुक्ततु तहतल बा, मैं बा के नीचे जो नुक्ता दिया जाता है वो हूं मैं, ठीक है? मुझे खुदा ना कहो, मुझे नबी ना समझना, मैं बे के नीचे का नुक्ता हूं। बहरहाल अब बे के माने हैं मदद के। अब एक एक नुक्ता यहाँ पे है, सब बहुत खतरनाक खतरनाक, अब सुनते रहिए बस, ठीक है? बे के माने हैं मदद के और इस्तिआनत के। अब नहीं पता यहाँ पे बे के नीचे कौन बैठा है जो सबकी मदद कर रहा है ना? तो बे के माने इस्तिआनत और मदद के। उसके बाद है इस्म। इस्म के लिए दो मानी किए गए हैं, ठीक है? एक माने है निशानी के, निशानी के, और एक मानी है बुलंदी के। सोमू जिससे आसमान है, आसमान यानी बुलंदी, उसी से है। एक है सोमू और एक है वस्म। एक है निशानी घोड़े के, यहाँ पे देखा होगा आपने, एक हल्का सा कहीं सफेद होता है कहीं कोई और होता है रंग जो दिखाई देता है पेशानी के ऊपर घोड़े के, उस चीज को कहते हैं निशानी के मानी में, उसको भी कहते हैं, एक माने वो भी है इसम का। निशानी बुलंदी, दो चीजें आप फिलहाल समझें, निशानी के माने और बुलंदी के माने। यहाँ पे देखिए ये नहीं कहा गया है। अच्छा, तर्जुमा हम लोग क्या करते हैं अब तक इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का? शुरू करता हूँ बनाम खुदा के बड़ा। आप बताइए, अरबी पढ़े हुए माशाल्लाह आप लोग, अरब में रहते हैं, इसमें कहीं शुरू के लफ्ज है? कहीं से एक लफ्ज दिखाइए हमको जहाँ 5 हरूफ है इसमें, नहीं 5 लफ्ज हैं। बे है, इसमें अल्लाह है, रहमान है, रहीम है, इसमें शुरू कहाँ से आ जा रहा है? शुरू नहीं, शुरू है ही नहीं।
بھائی شروع میں بھی شروع نہیں ہے اور آخر میں بھی کہیں شروع نہیں ہے، کہیں شروع ہے نہیں، لیکن ہم کہتے کیا ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ بھی نہیں کہتے شروع کرتے ہیں اللہ سے، ہاں یہ بھی نہیں کہتے شروع کرتے اللہ، یہ کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے اسم سے۔ اب وہ اللہ کے نام کون کون ہیں انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اگر اے سلمان، اگر پوری رات، نام صحابی کا دوسرا ہے، اگر پوری رات ایسے ہی میں صرف اور صرف بسم اللہ کے نقطے کی تفسیر کرتا رہوں تو سفیدی صبح نمودار ہو جائے گی، تفسیر تمام ہونے والی نہیں۔ تو بے کے معنی استعانت، اسم کے معنی بلندی اور نشانی۔ اللہ، اس میں بھی ایک پوری بحث ہے کہ یہ الہ تھا کہ ہو تھا کہ اللہ تھا کہ کیا تھا، انشاءاللہ وہ کل۔ الرحمن، الرحمن کے معنی کیا ہے؟ رحمتوں والا، ٹھیک ہے، یہی تو کہتے ہیں رحم کرنے والا۔ رحیم، یہ بھی رحم کرنے والا۔ خدا کو نہیں معلوم کہ دونوں اگر رحم کرنے کے معنی میں ہے تو کیوں ہے ایک ہی ساتھ، دونوں ایک ساتھ؟ وہ رحمت جو تمام کائنات کے لیے ہے وہ رحمان ہے، اور رحیم جو مخصوص رحمت ہے اس کے بندوں کی۔ ہاں، یہ تفسیر آج تک آپ لوگوں نے سنی، انشاءاللہ کل اس کی تفسیر میں آپ کو بیان کروں گا، خاص تفسیر جو ہے۔ چلیے آج بتا دیتا ہوں، یہ بتا کے اور یہیں پہ چیپٹر کلوز کرتا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 3 ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ کو سمجھانا تھا۔ ایک مشرک، کافر، مشرک، ملحد، یہ جو تھے، دوسرے یہودی، اور تیسرے عیسائی، ٹھیک ہے؟ 3 طرح کے لوگوں کو اللہ پہچانوانا تھا۔ تو سب سے پہلے لفظ اللہ آیا ہے، مشرک، ملحد، کافر، ان کے لیے لفظ اللہ آیا ہے، چونکہ وہ الہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ الہ کہتے تھے۔ اور الرحمن، توریت میں یہودیوں کے ہاں اللہ کا نام جو استعمال ہوا ہے وہ رحمان استعمال ہوا ہے، اور انجیل میں عیسائیوں کے ہاں جو اللہ کا نام استعمال کیا گیا ہے وہ رحیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ الرحمن اور الرحیم اللہ کی صفتوں 2 آئی ہیں۔ رحمان کا مطلب عمومی رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب خصوصی رحم کرنے والا۔ انشاءاللہ آج یہاں بہت خوب، ماشاءاللہ۔ باقی گفتگو انشاءاللہ فردہ، کل تو جمعرات ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد اجتماع سے دعا۔ خدا حافظ، پروردگار آپ سب کو خدا حافظ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔